सिंघम एंड भूल भुलैया, ये दोनों फ्रेंचाइज है. Clash could have been avoided. Yes. Is it a good thing? Is it a bad thing? See, when two big films release at one point of time, in आज की तारीख में, there's a lot of negativity that starts flowing in for both the films before the release. जैसे ही Clash announce होता है, द फैन क्लब्स सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर देते हैं कि इसका ये है और इसका ये है. One big disappointment this year, there was lots riding on Jigra. Yeah. As Alia Bhatt, top actress, produced by Dharma Productions. What went wrong with Jigra? And I just seriously want to tell this to Karan and Apurva. The masses want to watch you, watch your film. They make you the superstar. उनको छोड़कर आपने सडनली आपने पटरी बदल दी और आपने मेट्रो सेंट्रिक फिल्म बनानी शुरू कर दी. अरे देखना कौन चाहता है ये फिल्में? कौन? आप किसको केटर कर रहे हो? बैंड्रा से वर्सोवा ऑडियंस को? आप किससे वाहवाही चाहते हो? क्रिटिक्स से, वो चुनिंदा क्रिटिक्स जो बॉलीवुड फिल्मों में हॉलीवुड देखना चाहते हैं, उनको बोलिए आप प्लीज अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके हॉलीवुड चले जाइए. How much of credit goes to Shraddha Kapoor? उनका रोल तो छोटा था फिल्म में, if you ask me. Who gets the credit for this huge hit? शोले देखिए आपने? देखिए ना. अमिताभ बच्चन को क्रेडिट मिलना चाहिए, ठाकुर को मिलना चाहिए, गब्बर सिंह को मिलना चाहिए, या बसंती को मिलना चाहिए, या जय या वीरू को मिलना चाहिए. किसको मिलना चाहिए? जब एक फिल्म चलती है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी वजह से चली. हाय, दिस इज तरन आदर्श एंड यू आर वाचिंग मी विद रोहित खिलनानी ऑन बॉलीवुड हंगामा. कीप वॉचिंग. Welcome to Bollywood Hangama. I'm Rohit Khilnani. I'm delighted to be sitting once again with Taran Adarsh. Taran, good to see you. Good to be talking to you, sitting with you. It's been a long time. Where have you been and how are you? Well, it's been more than a year actually. Yes. I've been unwell, as you know. Everyone knows, I guess. And it's good to be alive, to be breathing, to be writing, to be watching movies and to live cinema actually. God is kind and here I am after almost a year or more than a year actually. Right. Yes, more than a year actually. I'm facing the camera again. Right. And but it's a great feeling. Right. Yeah. We miss talking to you, but what I can see is that the spirit is there. Everything is absolutely intact. Yes, so thank you. God is kind. God is kind. Yes. Yeah. Then I've come to you at a time when there is a big Bollywood clash going to happen. Yes. So let's first straight jump into that ये दो बड़ी फिल्में आ रही है. हाँ जी. सिंघम एंड भूल भुलैया, ये दोनों फ्रेंचाइज है. Clash could have been avoided. Yes. Is it a good thing? Is it a bad thing? Well, देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पर कि दिस नॉट द फर्स्ट टाइम जो ये क्लैश हो रहा है, एज यू नो. इससे पहले भी हुआ, एंड आई विल गिव यू अ वेरी सॉलिड एग्जांपल आल्सो. बट कमिंग बैक टू, आई विल कम टू दिस पॉइंट फर्स्ट, एड्रेस दिस पॉइंट फर्स्ट. See, when two big films release at one point of time, in आज की तारीख में, there's a lot of negativity that starts flowing in for both the films before the release. जैसे ही Clash announce होता है, the fan clubs सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर देते हैं कि इसका ये है और इसका ये है. Both the जो फिल्मों के stars होते हैं, they start targeting each other's films. It spills over to the industry. और जब फिल्म की रिलीज नजदीक आती है, then the distributors start fighting with each other, not literally, but to get the screens. तो इसमें मारे कौन जाते हैं? एग्जिबिटर्स, क्योंकि उनको दोनों को प्लीज करना है. और in this case, there is सिंघम again, there is भूल भुलैया 3, दोनों महारथी हैं जो साथ में आ रहे हैं. अब ये क्लैश जो होता है, इट कुड बी अवॉइडेड. वेल, वन ऑफ द एक्टर्स, जब मैंने अनाउंसमेंट डाला एक पर्टिकुलर फिल्म का दिवाली के वक्त, तो ही इमीडिएटली कॉल्ड मी अप. ही इज अ लीड मैन ऑफ दैट फिल्म एंड ही सेड के, आई डोंट वांट टू नेम हिम, ही सेड के आपने न्यूज़ डाली है और ये फिल्म पक्का दिवाली पे आ रही है. तो मैंने कहा हाँ आ रही है, ऑफिशियल ही है. तो मैं जानता हूँ आपने अनाउंस किया तो ऑफिशियली होगा, बट
क्यों कर रहे हैं ये? तो मैंने कहा, एक ही बात कही उन्हें, मैंने कहा कि देखिए हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और किसी भी रिलीज डेट पर किसी का हक नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि क्योंकि मैंने पहले अनाउंस की थी तो ये मेरी डेट हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। गोइंग बैक अ बिट, और मैं बहुत आपको 40 साल पीछे लेके जाऊंगा। वो दौर मैंने जिया है, मैंने देखा है। मैं बात कर रहा हूँ 1978 की। 1978 यानी कि 46 साल पहले। मैं तभी 13-14 साल का था। So I've given away my age. Anyway, I'm 60 years. But 46 साल पहले एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम है कस्मे वादे। अमिताभ बच्चन उस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे। उस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन, रणधीर कपूर, नीतू सिंह, राखी, रमेश बहल जो गोल्डी बहल के पिताजी हैं, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। पहले हफ्ते में अमिताभ बच्चन जो हीरो थे उनकी ये फिल्म रिलीज होती है। उसके अगले फ्राइडे एक फिल्म आती है जिसका नाम है बेशरम। अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर और देवेन वर्मा जो एक महान कैरेक्टर एक्टर थे, वो डायरेक्टर थे। ओके। तो पहले हफ्ते में आ गई कस्मे वादे, दूसरे फ्राइडे को आ गई, बिल्कुल इमीडिएटली नेक्स्ट फ्राइडे को बेशरम, तीसरे फ्राइडे को आती है यश चोपड़ा की मल्टी स्टारर जिसमें है संजीव कुमार, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, त्रिशूल, रिटन बाय सलीम जावेद, वो भी एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं उस जमाने के। तो कस्मे वादे अमिताभ बच्चन, बेशरम अमिताभ बच्चन, त्रिशूल अमिताभ बच्चन। रुकिए, और उसके चौथे फ्राइडे को आती है डॉन। अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, सलीम जावेद अगेन, चंद्रा बारोट डायरेक्टर। ये 4 फ्राइडेज, लगातार 4 फ्राइडेज अमिताभ बच्चन की फिल्में रिलीज होती हैं, जिसमें से बेशरम ठीक ठाक चलती है, बट बाकी 3 50 हफ्ते, 75 हफ्ते, 100 हफ्ते चलती है। उस वक्त ये नेगेटिविटी नहीं थी। क्लैशेस होते थे। मैंने कभी नहीं सुना सलीम जावेद को या रमेश बहल को या फॉर दैट मैटर एनीवन जो भी कनेक्टेड थे, यश चोपड़ा जो त्रिशूल के प्रोड्यूसर थे, वो बहुत महान, वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे उस जमाने के, जो एक नामचीन डिस्ट्रीब्यूटर भी थे और फिनेंसर भी थे, जिनका नाम था गुलशन राय। गॉड ब्लेस हिज सोल, ही वाज अ फैंटास्टिक मैन एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। बट मैं कहने का मतलब ये है कि नॉट वन नेगेटिव वर्ड अबाउट द अदर फिल्म, राइट, या खींचातानी कि हम ये थिएटर रखेंगे या हम वो थिएटर, तुम क्यों आ रहे हो, या ये या कोई एक्टर कह रहा है या अमिताभ बच्चन दबाव डाल रहे हैं कि मेरी 4 फिल्में 4 फ्राइडेज को रिलीज हो रही है, जबकि ही वाज नंबर 1 टू नंबर 10। पर सोचिए 4 फ्राइडेज। आज की तारीख में हम इमेजिन कर सकते हैं कि शाहरुख खान की पठान आज लगी, अगले फ्राइडे को जवान लगी, तीसरे हफ्ते डंकी लगी और चौथे हफ्ते शायद किंग लग गया। इमेजिन नहीं कर सकते। बट उस वक्त हुआ था। पर क्लैश जब ये होते थे फिल्में, जब फिल्में वो चल रही थी, फिल्म एक्सेप्टेबल बिजनेस, हाँ, तब लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। वेरी राइटली सेड, एक्सेप्टेबल बिजनेस। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये फिल्में आएंगी, इससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। और ऐसे अनेक उदाहरण, एग्जाम्पल्स है where people have released films, they have clashed with each other, but there was no negativity. Partly also because there was no social media in those days. The media used to write. I'm not denying that. There used to be media in those days, which was very aggressive also. Magazines. But the thing is that there was no negativity in those days. Today I find a lot of people आज की तारीख में फेलियर पे ज्यादा खुशियां मनाते हैं, always, बजाय ये कि sad, कामयाबी पे खुशियां मनाएं। सो दैट हैज चेंज्ड। हमारा सोचने का तरीका है चेंज्ड, हमारे देखने का, क्लैशेस को हम जब देखते हैं तो हम ग्रुप बना लेते हैं, क्लैन हो जाते हैं हमारे यहाँ कि मैं इस साइड में हूँ, मुझे इसका गलत बोलना है, मुझे इसका सही बोलना है। ये बातें जो हैं ये अब पिछले कई सालों से मैं नोटिस कर रहा हूँ, बट सोशल मीडिया के साथ आपको जीना पड़ेगा। डबल एज स्वॉर्ड है, यहाँ प्रमोट भी करते हैं फिल्म्स, बिल्कुल, और आपको वो आके इमीडिएटली आपके दरवाजे पे खड़े होके गाली भी देके चले जाते हैं। फ्राइडे फर्स्ट शो के बाद इट्स आउट देयर। बिल्कुल।
इनफैक्ट मैंने कई बार नोटिस किया, आई हैव नोटिस्ड एंड दिस इज गोइंग टू गेट वर्स नाउ व्हेन सिंघम एंड भूल भुलैया रिलीज. सी यू नो द सैड पार्ट इज नाउ आज हम संडे पे हैं एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आज दोनों फिल्मों की जो मेन एडवांस बुकिंग होती है वो नहीं खुली है, बिकॉज द स्टेलमेट, द सस्पेंस कंटिन्यूज, बिकॉज अब तक इनका सेटलमेंट नहीं हुआ है. सो आई गेस हाँ कुछ चेन्स में उन्होंने एडवांस बुकिंग खोल दी है, बट you need to sort out the main I saw your tweet, you know, that where ki this is a stalemate और अब तक you know they are fighting for screens. Is there a solution for this in the long term? I genuinely hope that they sit across the table. ऐसी कोई बात नहीं जब आप किसी के साथ सामने बैठकर दिल साफ रखकर बात करिए एंड जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आई एम श्योर अभी आज आपके पास दिन कितने, हाउ मेनी डेज, वी आर ऑन संडे, यू हैव टाइम टिल थर्सडे, राइट? फ्राइडे द मूवी रिलीजेस. हाँ अभी आप बोल सकते हो कि भाई थर्सडे की रात को 11-12 बजे तो उसकी एडवांस बुकिंग खुली थी, सूर्यवंशी की अगले दिन पिक्चर लगी थी एंड इट वाज अ सुपर हिट. यस, बट उसका कोविड टाइम्स. आज अलग टाइम है. यू आर इन अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन टुडे. तो लोग कहते हैं कह रहे गोलमाल के टाइम पे ये हुआ था, गोलमाल के टाइम पे सीक्रेट सुपरस्टार के साथ उन्होंने किया था और वो उसको स्क्रीन नहीं मिले थे रोहित शेट्टी को. अरे भाई जो बातें पुरानी हो गई, आज की तारीख की बात करो. फाइंड अ सॉल्यूशन. हाँ आज जो ये हुआ है तो आज उसका सॉल्यूशन निकालो, बजाय ये कि आप पिछले बातों में जाओ और उस उदाहरण को इसमें साथ में शामिल करो. और हम ऐसे टाइम पे नहीं जी रहे हैं कि यहाँ एक थिएटर है, यहाँ एक थिएटर है, हर थिएटर में 5-5 स्क्रीन. बिल्कुल. और अंधेरी में वी आर सिटिंग लिटरली एक किलोमीटर में 3 मल्टीप्लेक्स है विद 5-6. देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. इवन टू डेट साउथ में मैं तेलुगु मार्केट की बात करूँ तो वहाँ पर जब संक्रांति पे 2-3-4 फिल्में लगती है, या अभी दिवाली पे तमिल में कुछ 3-4 फिल्में रिलीज हो रही है, पर मैंने नहीं सुना कि वहाँ पर कोई नेगेटिविटी हो रही है. कभी संक्रांति के दौरान ये नहीं सुना कि वन एक्टर इज टारगेटिंग, आई मीन नॉट द एक्टर्स बट maybe the fan clubs are targeting each other. No, you don't hear about it. Maybe it happens, I'm not denying that, in a very subtle way, in a very quiet way. But here, it happens, I mean, it is so out in the open where the fan clubs are targeting each other every time you post something, and there is unnecessary negativity that flows in with that one particular tweet that comes out. And I think that is really very unfortunate, because films are meant to be enjoyed on the big screen. So the whole process of enjoying on the big screen somewhere gets diluted for this particular reason. And I think that is very unfortunate. Right. You lost riding on this one, Taran, because Ajay has a flop recently. औरों में कहाँ दम था. रोहित शेट्टी की पहली सर्कस इससे पहले नहीं चली. अर्जुन कपूर has had series of flop. रणवीर was in circus. कार्तिक की चंदू चैंपियन इतनी नहीं चली. So you think everyone is really going aggressive because they all desperately need a hit? Yes, क्योंकि आज आपकी पहचान पिछले शुक्रवार से होती है. You're known by your last Friday, and this has happened over decades. I've seen this where you live Friday to Friday. You live on a Friday to Friday basis, and every actor I've interacted with a superstar. Okay, I'll name him, Rajesh Khanna. When Amitabh Bachchan was rising at that point of time, and Rajesh Khanna was somewhere going down for whatever reasons. I don't want to get into that. But the fact is that he was so bothered, or even Amitabh Bachchan was so bothered about his Fridays doing well at the box office. So when Tufan and Jadugar didn't work, they came within a gap of 2 weeks. पहले तूफान रिलीज हुई थी, उसके बाद जादूगर, एंड बोथ वर डिजास्टर्स. At that point of time also, the thing is कि everyone gets shaken. Here you rightly pointed out that yes, Ajay has had a flop. औरों में कहाँ दम था. Deepika is at Fighter, Kareena is at Buckingham Murders. I agree on everything, but it takes only one Friday to change everything. Right. शाहरुख खान की कितनी फ्लॉप्स आई थी पठान से पहले, बट वन पठान changed everything. It's still on top. Yes, and then came Jawan. You know, and again, I mean, people were, wow, the king is back. But the king went nowhere. True, king went nowhere. He was always on the throne. Right. I mean, I still maintain Shah Rukh Khan is number 1 to number 5. You know, I'd like to point out something here. If at all I find, sorry, I'm just going slightly off the topic here. But you know, due to my illness, I could not
perhaps I could continue that on a later thing. I could not watch Animal in the theater or at the preview screening of at T-Series. They kept calling me, but I was in the hospital. But I met Sandeep Reddy Wanga recently in Dubai for the South Indian Awards. And I saw Animal on Netflix. मैंने Netflix पे एक बार देखी, 2 बार देखी, 3 बार देखी, and every time I saw it, I felt it is a fantastic film. You can judge me for it. No. I don't care. True. I'm not you. I'm talking. True. Anyone. Yeah. Anyone can judge me for it. Right. I loved the film. It's a fantastic film. Sandeep Reddy Wanga is a genius, and Ranbir Kapoor is the next. Oh, sorry. He is the next Shah Rukh Khan. Should I say that? You know, Shah Rukh Khan की एक अलग position है, but Ranbir Kapoor is something else. There is no उनकी उम्र में कोई भी actor, with due respect to Ranveer Singh or to Kartik Aaryan, I'm naming these actors also, who are his contemporaries. I don't think anyone can match Ranbir Kapoor after Animal. Wow, yeah. He is a fantabulous actor. Wow. For me, he's the best that we have today. But coming back to your question, yes. Even Ranbir Kapoor had a string of flops. Even Shah Rukh Khan had a string of flops. But they all bounced back with One Friday. Right. I think that's very important. And who knows that this Friday could be the turning point for Singham, the entire cast. Yeah, entire cast. For Kartik Aaryan, who's not delivered the numbers in Chandu Champion. He was very good in Chandu Champion. He was excellent. Film was great. Yes. It was a fantastic film. I'm not denying that. But what happens is कि सिर्फ तारीफ से पेट नहीं भरता. You need to back it up with box office numbers. Yeah, distributors have to. Yes, you need to. और आज की तारीख में जब आप एक महंगी फिल्म बनाते हैं जिस पे stakes high हैं, and the thing is कि you need to have the box office validation for it. True. You know. True. So going by the 2 का trailers आया, एक trailer था, it is really Singham is a very long trailer, and this one also has a lot of relatability. Comments तो भर के negative positive सब है, songs आते जा रहे हैं. What is your gut feeling? Well, I think both should do very well. Okay. I love both the trailers, and the good thing is that both are different genres. एक मसाला फिल्म है, and what I really liked about Singham this time, of course I knew about it, but I could not write about it. At that point of time, I knew about the Ramayana angle. Now, if they've smartly integrated Ramayana, that's very important. If they do that well, integrated it well in the narrative, then it works. Singham again is a brand. Right. Bhul Bhulaiya again is a brand. And this time the master stroke is that, you have Madhuri Dixit also. Yes. With Vidya Balan and Kartik Aaryan. And I'm sure it's going to be a well-packaged movie. I'm not denying that. But the thing is, the good part is that both are diverse genres. Right. And both are, there's so much to choose from. One is an action-oriented film. One is a horror comedy. Horror comedies have had a great run this year. True. There was, of course, there was a supernatural thriller this year called Shaitan. Then followed by Munjia, of course. Stree 2. And then there was a horror film that was revived in theatres, Tumbad. Yeah, Tumbad. Which did phenomenally well at the box office. So this year has been a great year for those films. And I hope that this year, when it ends with this film, with this genre, I think this is again going to be a hit. Let's hope so. We need it. Right. The exhibitors are bleeding. True, yeah. The industry is bleeding. See, what happens is you need to have continuous hits. एक बहुत वैक्यूम आ गया. आज 2 अक्टूबर को फिल्म रिलीज नहीं हुई. गांधी जयंती, इट्स अ बिग हॉलीडे. अनाउंस हुई थी पर रिलीज नहीं हुई. चलो, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. बट जब फिल्में रिलीज नहीं होती है और exhibitors जो होते हैं वो सोचते हैं हम करें क्या. Sad time, yeah. It's they have to pay the bills. Everyone has to pay the bills. Right. And I think somewhere down the line you feel कि what do we play? Yeah, true. अच्छा, जो पुरानी फिल्में हैं वो कोई वापस देखने नहीं आ रहा है. So then you release some film and then बस वो काम चल रहा है. True. अभी ये horror comedy, we just call it horror comedy, but wasn't this always there? When Ramsey brothers would make, there would be a Satish Shainis, there would be a Mehmood, there would be a Kader Khan in it. This was always there, right? You're so right. You're so right. And they were money spinners. Yeah.
रामसे की जब फिल्में बनती थी, they were money spinners because I know this, they were money spinners because my father used to distribute most of those films. Right. Yeah, he was one of the distributors. And obviously जब मेरे पिताजी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मुझे मालूम पड़ेगा कि अकाउंट्स क्या है, you know. Ramses were part of it. There were other films also from Manmohan Desai to Prakash Mehra. My father used to distribute those films. Having said that, I think Ramses जो trend था, and I have not understood this thing. That उस वक्त इतना पॉपुलर ट्रेंड था ये हॉरर फिल्मों का, इतनी फिल्में चलती थी, दरवाजा, दो गज जमीन के नीचे, पुराना मंदिर, वीराना, you know, and होटल, और ये सारी फिल्में इतनी चलती थी. Samri, Samri, was such my a God, big hit. game changer, My God, and then you know suddenly no one made it. No one made those. Of course, there was Ram Gopal Verma who made Bhoot and Phoonk and you know. But the thing is कि no one after that really attempted those kind of films, which should have been attempted. आज हम कॉमेडी बनाते हैं, हम मसाला बनाते हैं, हम सोशली रेलेवेंट फिल्म बनाते हैं, जो भी है, या रियलिस्टिक बनाते हैं, बायोपिक बनाते हैं, तो वो हमने उस जॉनर को हमने निग्लेक्ट करके साइड में रख दिया, विच शुड बी टैप बिकॉज देयर इज एन ऑडियंस फॉर इट. हमें सब में कहीं ना कहीं एक डर छुपा है, किसी भी चीज का डर है. वो जो डर जो एलिमेंट होता है ना, वो पर्दे पे देखने का ही अलग मजा होता है. So Maddox has, you know, understood that, you think? Yes, I think they have, and I think somewhere down the line they have mastered this art of balancing horror and comedy, and most importantly making a film within a stipulated budget. एक कम बजट में या एक मीडियम मिड रेंज बजट में उन्होंने एक अच्छा पैकेज एंटरटेनर दे रहे हैं वो, और ऑडियंस उसे लाभ कर रही है. आई थिंक they are just picking it up and they are loving it. And there were two different things. Stree 2, a lot of people can give credit to the Stree 1 and all. Munjya came from nowhere. Were you expecting of Munjya to come and become this? You know, a lot of people feel कि मुंजिया में ऐसा क्या था जो चल गई, 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया. बट यू नो मुंजिया में आप देखिए फिल्म, एक उसने एक हॉरर एलिमेंट तो डाला ही है, कॉमेडी भी डाला है, बट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रेशनेस टू इट. There's something new. There's something new. And I think that works. You know, it's a well packaged entertainer. That's more important. Most importantly, कि मुंजिया में भी उन्होंने एक ब्रांड खड़ा कर दिया है. अब यू नेवर नो कल मुंजिया 2 आ जाएगी. You never know. या अब स्त्री का तो वैसे ही ब्रांड हो गया है. या जब एक फिल्म चल जाती है तो कहीं ना कहीं आप उसको और आगे लेके जाना चाहते हैं, यूज कर सकते हैं. और उनकी ऐसी कई फिल्में आ रही है, भेड़िया भी आ रही है, और एक 2-3 और आ रही है. लेट देम अनाउंस इट ऑफिशियली. तो जो जिसकी शूटिंग भी चालू हो गई है, और जब वो ऑफिशियल अनाउंस करेंगे तो बेटर होगा. तो वो इसी मतलब जॉनर्स की है जो जहाँ पर हम जिसका जिक्र कर रहे हैं. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. It's a great thing. Stree 2 did very well. It's really on number 2 of all times, just below Jawan. How much of credit goes to Shraddha Kapoor? उनका रोल तो छोटा था फिल्म में, if you ask me. Who gets the credit for this huge hit? Stree 2 का. श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, या डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को. शोले देखी आपने? देखी है ना? अमिताभ बच्चन को क्रेडिट मिलना चाहिए, ठाकुर को मिलना चाहिए, गब्बर सिंह को मिलना चाहिए, यू नो, या बसंती को मिलना चाहिए, या जय या वीरू को मिलना चाहिए. किसको मिलना चाहिए? जब एक फिल्म चलती है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी वजह से चली. जब आप में वो मैं आ जाता है तो उसे कहते हैं घमंड. और आपकी वजह से फिल्म नहीं चलती, आपकी फिल्म चलती है क्योंकि उसमें कुछ था जो दर्शकों ने पसंद किया इन टोटालिटी. तो अगर शोले में कोई कहे कि वो फिल्म ठाकुर की वजह से चली, या जय की वजह से चली, या वीरू की वजह से चली, मुझे लगा वो फिल्म इसलिए चली क्योंकि वो बहुत बेहतरीन फिल्म थी जो सलीम जावेद ने बहुत खूबसूरती से लिखी थी. बट यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर्टिकुलर कुछ एक्टर्स क्रेडिट लेना चाहते हैं. लीजिए, आपकी फिल्म चल गई है, खुशी मनाइए, बट आप सोलो क्रेडिट नहीं ले सकते. जी बिल्कुल, nobody can take that. मैं तो कहूँगा, और ये बात मैंने कही भी प्रोड्यूसर कि ये जो फिल्म है स्त्री 2, इसका क्रेडिट सबसे पहले प्रोड्यूसर्स को जाता है और उस डायरेक्टर को जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने ग्रीन लाइट नहीं किया होता तो ये सब होता ही नहीं था. बराबर है. True. और
शाबाशी है उनको, दिनेश विजन, ज्योति देशपांडे, जियो स्टूडियोज की, अमर कौशिक और अमर कौशिक जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, जिन्होंने ये सोचा कि हम इसको आगे लेके जाते हैं और इस तरह से आगे लेके जाते हैं, और ये फिल्म चली नहीं, ये फिल्म दौड़ रही है। I mean, imagine. Yeah, number 2 of all time. नहीं, number 2 of all times. See, Jawan had Tamil and Telugu versions also. yeah. This was, अगर pure हिंदी की बात करें, this was not released in Tamil and Telugu. okay. So it's a number 1 film of all time. Okay. But having said that, I feel that it's such a big achievement. It's a huge क्या जवान के साथ आप स्त्री का नाम ले रहे हैं? Really? You know? True. And या फॉर दैट मैटर पठान से भी आगे निकली, गदर से भी आगे निकली, जो भी फिल्में हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये सारी बहुत कमाल की सक्सेसफुल फिल्में रही है। बट कहने का मतलब ये है कि भाई स्त्री की क्या किसी ने कल्पना की थी कि ये इतना अच्छा बिजनेस करेगी? आई डोंट थिंक प्रोड्यूसर्स ने भी सोचा होगा। हाँ, सब चाहते हैं कि उनकी फिल्म कामयाब हो और कामयाबी के नए झंडे गाड़े, and it should do a business of 200 crores and 250 crores and 300 crores, but 600 plus for a film like this. This is a Sholay moment for the producers. I told this to them. I said, this is your Sholay moment. कि जिंदगी में ऐसी लॉटरी बहुत कम लगती है. I hope लगातार लगे. I am not denying that, but you know, it's very rare to find a film which proves all calculations, every prediction wrong. No superstar like Khan. No superstar, nothing. And by a wide margin. Imagine the kind of business this film is. Right. One big disappointment this year, there was lots riding on Jigra. As Alia Bhatt, you know, top actress, produced by Dharma Productions. What went wrong with Jigra? See, सबसे बड़ा problem जहाँ तक मैं देखता हूँ, I've not watched the film yet because I was traveling. And I just wish to add here that on paper, I feel, when I look at it, I feel when you want to make a commercial film, you want to reach out to a wider audience, and then you take a director whose sensibilities are not matching that. क्या होता है कि देखिए, जब आप एक, what is Dharma Productions known for? And I just seriously want to tell this to Karan and Apurva. धर्मा प्रोडक्शंस की शुरुआत हुई थी दोस्ताना से। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, राज खोसला साहब ने डायरेक्ट की थी। जबरदस्त हिट थी, कमर्शियल मसाला फिल्में। यश जौहर जी ने कई फिल्में बनाई, उसके बाद कुछ चली कुछ नहीं चली, दैट्स बिसाइड द पॉइंट। करण जौहर ने जब शुरुआत की, इट वाज अ लव स्टोरी, कुछ कुछ होता है, फॉलोड इट अप विद बिगर फिल्म, यस, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। तो जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, उसे छोड़कर आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं टू मेक मेट्रो सेंट्रिक फिल्म्स, और ऐसे डायरेक्टर्स को लेते हैं जिनकी, जो शायद अपनी सोच के हिसाब से वो बराबर हैं, बट कमर्शियली वो सूट नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो फिल्म का नाकामयाब होना निश्चित है। और एक और बात बता दूं, cater to the masses, not the elite. That's key. आप चुनिंदा 5-6 सिटीज़ के लिए फिल्म बनाएंगे तो वो फिल्म का फ्लॉप होना निश्चित है। इसीलिए कई एग्जिबिटर्स मुझे कहते थे, कई एग्जिबिटर्स ने मुझे कहा है कि हम अभी हिंदी फिल्में नहीं चलाते उतना, हम साउथ की फिल्में चलाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस देखना चाहती है, वो उसमें मसाला है। दे हैव नेवर लेफ्ट इट। हम हमेशा मसाला फिल्में बनाते थे। 70s में आप देखें, 70s 80s का जो दौर था, वो मसाला फिल्मों का दौर था, और एक के बाद एक फिल्में कामयाब होती थी। हमने कुछ देर पहले ही मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे अमिताभ बच्चन की फिल्मों का, एंड दे वर्कड एट द बॉक्स ऑफिस। और ऐसे धर्म जी हुए, शत्रु जी, शशि कपूर, राजेश खन्ना, ऐसे कई सुपरस्टार, विनोद खन्ना, कई सुपरस्टार से जिनकी फिल्में लगातार आती रहती थी। एक एक एक्टर्स की उस वक्त साल में 7, 8, 9, धर्म जी की तो 8-9 फिल्में आती थी एक साल में, और कामयाब होती थी, यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि द मासेस वांट टू वॉच यू, वॉच योर फिल्म, दे मेक यू द सुपरस्टार। उनको छोड़कर आपने सडनली आपने पटरी बदल दी और आपने मेट्रो सेंट्रिक फिल्में बनानी शुरू कर दी। अरे देखना कौन चाहता है ये फिल्में? कौन? आप किसको केटर कर रहे हो? बैंड्रा से वर्सोवा ऑडियंस को? आप किससे वाहवाही चाहते हो? क्रिटिक्स से, वो चुनिंदा क्रिटिक्स।
जो बॉलीवुड फिल्मों में हॉलीवुड देखना चाहते हैं, उनको बोलिए आप प्लीज अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके हॉलीवुड चले जाइए। बट जब तक आप हमारे ऑडियंस को केटर नहीं करेंगे, देसी ऑडियंस को केटर नहीं करेंगे, उनके लिए फिल्में नहीं बनाएंगे, आप अपने लिए फिल्म नहीं बना रहे हो, आप उनके लिए फिल्म बना रहे हो। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू केटर टू देम। And the minute he made a Rocky Rani, which was big, and Yes. it worked. It worked. Yeah. It really worked. Right. He, you know, the thing is that you need to realize that there's a huge audience out there wanting to watch a good entertainer. Yeah. You know, there was a dialogue of Vidya Balan in Dirty Picture: entertainment, entertainment, entertainment. That is a reality. Right. Whether you like it or not. Critics का क्या है? Critics को तो आप, उनको तो भाई आज की तारीख में स्त्री भी पसंद नहीं आएगी, उनको पठान भी पसंद नहीं आएगी, उनको जवान भी पसंद नहीं आएगी, उनके बोलने से क्या होता है? True. ऑडियंस जो बोलता है और बॉक्स ऑफिस जो बोलता है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, हर प्रोड्यूसर, और ये क्रिटिक्स सारे सुन ले, हर प्रोड्यूसर फ्राइडे को जब सवेरे होता है ना, तो हाँ मेरे इतने अच्छे रिव्यूज आए हैं, जैसे ही दोपहर होती है सबसे पहले फोन आता है, मेरा फर्स्ट डे कितना जाएगा, सेकंड डे कितना जाएगा, थर्ड डे कितना जाएगा, वीकेंड कैसा लगेगा, पहला हफ्ता कैसा लगेगा, क्या मेरी पिक्चर चलने वाली है, लाइफ टाइम कैसा लगेगा। एक्टर से लेके प्रोड्यूसर सब बॉर्डर होते हैं, आपके स्टार विद ड्यू रिस्पेक्ट तब भुला दिए जाते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। आपके ईगो के लिए बहुत अच्छा है कि आपकी फिल्म को 4 and 5 स्टार मिले हैं, बट व्हाट इवेंचुअली मैटर्स इज द बॉक्स ऑफिस। Right. Ultimately. Ultimately. Right. You know, this year we also saw an actor come up suddenly this year, Ananya Pandey, who didn't get a lot of respect in the previous years. एक हो गए हम काम में, उनको बहुत प्रेज और प्यार मिला। 2 बड़े OTT शो आए, OTT एक फिल्म आई विक्रमादित्य मोटवानी की कंट्रोल, और एक कॉल मी बाय शो जो उनका था, दोनों एकदम अलग, लेकिन उनको प्यार बहुत मिल रहा है। इज देयर समथिंग दैट वी हैव टू कीप एन आई आउट दैट? Well, I think since you're talking about Ananya Pandey, I feel that you polish with time, you become better with time, and when you work with better directors, it always happens. देखिए कोई सीख के नहीं आता, ये नहीं कि मैं जब सेट पे जाऊंगा तो मैं परफेक्ट रहूंगा, नॉट एट ऑल। अगर शायद आपने नहीं, बट जब मैंने भी शुरुआत की थी तो मैं नहीं कहता था कि मैं परफेक्ट हूँ, वो वक्त आपको बहुत कुछ सिखा देता है, लोग आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अनन्या पांडे के साथ भी शायद ऐसे ही हुआ होगा कि वक्त आपको सिखाता है, वो डायरेक्टर्स के साथ जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपको सिखाते हैं। बेटर स्क्रिप्ट्स जब आने लगते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि ये मेरा पोटेंशियल है, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। तो ये जो एक जब स्टेप होती है, एंड आई एम सी वी नीड एक्टर्स, देयर इज रियली, आई मीन लोग बोलेंगे नेपोटिज्म, अब क्या नेपोटिज्म? ऐसे कई एक्टर्स हैं जो नेपोटिज्म जिन पे लेबल लग सकता है। अभी मैंने कुछ देर पहले रणबीर कपूर की बात की, वो तो 4th जनरेशन है, पृथ्वीराज कपूर साहब, राज कपूर साहब, ऋषि कपूर साहब, रणबीर कपूर, बट वो अपनी काबिलियत की वजह से वहां, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, राइट। सिमिलरली साउथ में, और मैं अगर तेलुगु इंडस्ट्री की बात करूं खासकर, तो वहां पर तो बहुत सारे स्टार किड्स हैं, 2nd जनरेशन एंड 3rd जनरेशन, एंड दे आर फैंटास्टिक एक्टर्स। तो इसका मतलब, पर वहां पर नेपोटिज्म की बात या डिबेट नहीं चलते हैं, बॉलीवुड को टारगेट किया जाता है। अरे छोड़ो यार, राइट, इफ यू आर डिजर्विंग यू विल गेट अ चांस। तो ऑडियंस आपकी फिल्म देखेगी, ऑडियंस ही आपको बनाती है और ऑडियंस ही आपको गिराती है। नेपोटिज्म या नेपोटिज्म नहीं है या आउटसाइडर है, ये जो डिबेट्स होते रहते हैं, ये सिर्फ टीवी चैनल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक when anyone watches a film, anyone, आप या मैं, खासकर मैं अगर अपनी बात करूं, तो जब मैं फिल्म देखता हूं तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि ये नेपोटिज्म है, ये फलाना का बेटा है या उसका नेव्यू है या नीस है या इसका फादर है। आई फील दे आर देयर, वो कैरेक्टर में सूट होते हैं कि नहीं होते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स। ट्रू। Hi, this is Taran Adarsh and you're watching me with Rohit Khilnani on Bollywood Hungama. Keep watching.